Chapter number 8, metallurgy. What is a metallurgy? Okay. Now, what is a metallurgy? Metallurgy is the study of metals. नहीं, the purification of metal. Okay, यहाँ पे properties of metals पढ़ना है, chemical properties of metal, chemical properties of non-metal, metallurgy का various concept, physical properties of non-metals, reactivity series of metals and ionic compounds. Now, अभी देखो ये बहुत ही interesting दिया है. Earth was born about कितना? Earth was born about how much time? 4.5 billion years ago. कितना साल पहले? Earth was born 4.5 billion years ago. इतने साल पहले Earth का जन्म हुआ था, मतलब Earth was formed. Actually huge cloud of gases and dust वगैरह होता था. वो डस्ट साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, सेटल होने लगे, पूरा गैलेक्सी में से फिर अर्थ बनना चालू किया, सोलर सिस्टम बना, अर्थ बना. Various formative processes have been taking place in the core of the earth. हमारे अर्थ के कोर में, कोर मतलब क्या, सेंटर में बहुत सारे फॉर्मेशन प्रोसेस होते रहता है, आज भी हो रहा है. एंड इट्स सराउंडिंग सिंस इट्स क्रिएशन टिल टुडे. जब से वो बना है अभी तक कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है अर्थ के अराउंड में. These have been resulted in the formation of various ores. Have been resulted in formation of various ores. Now, what is the ores? The impure metal, metal with mixture of some other things. Okay, with mixture of some other things, liquids and gases, liquids and gases. Now, which method do we use when we want to study many things together at the same time? क्वेश्चन क्या है, सोचो इसके बारे में कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके बारे में हम सोचते हैं. ठीक है. Now the substance around us are in the form of some or other elements. जो भी हमारे अराउंड में है वो कुछ न कुछ तरीके से एक एलिमेंट की फॉर्म में है. Now what is an element? Gold is an element. Silver is an element. Iron is an element. Metal है but they are element. Oxygen is also an element. किसी एक चीज का material is called as element. In the beginning, elements were classified in accordance with chemical and physical properties into types like metals, non-metals and metalloids. Starting में metal and non-metal ही माना जाता था, but बाद में metals, non-metals and metalloids के बारे में मालूम पड़ा. And these are even used even today. You have studied their characteristic in the last standard. उनकी characteristic हम last standard पढ़े थे. We are going to get more information about them in this lesson. हम लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ेगा in this lesson में और information. मतलब metal, non-metal, metalloids के अलावा. What are the physical properties of metals and non-metals? What do you mean by the word physical property? Physical property मतलब उसका form, हाँ, उसका size, उसका length, उसका वो existence जैसा तुमको दिखता है ना, that is a physical properties. अच्छा, metals को तुम hold कर सकते हो, gold, silver, हाँ, platina, हाँ, iron, ये सब hold कर सकते हैं ना, तो they are existing in which state? Solid state. The metals, namely mercury and gallium, exist in liquid state. और एक है आर्सेनिक भी बता रहा हूं मैं. मर्क्यूरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, गैलियम हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर. मतलब अभी जो हमारे अराउंड टेम्परेचर है उसके अंदर वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा. मेटल पजेस लस्टर. लस्टर मतलब क्या होता है, शाइन. वो शाइन करता है. अगर उसको पॉलिश करेंगे तो क्या होता है, वो शाइन करता है. Metallic luster goes on decreasing due to exposure to atmospheric oxygen. जैसा एयर के कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, उसका शाइनिंग कम हो जाता है. एंड द मॉइस्चर एंड आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ सम रिएक्टिव गैसेस. कुछ गैसेस के सामने भी उसका लस्टर्स कम हो जाता है. We know that metals have the properties namely ductility and malleability. Now what do you mean by ductility? हाँ, लोहे का वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं. हाँ, सोने का तार बना सकते हैं, चांदी का तार बना सकते हैं. ये मेटल का है ना, तार बना सकते हैं. तार मतलब उसके छोटे छोटे थ्रेड जैसा बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी. व्हाट इज मेलिएबिलिटी? दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट. अच्छा, ऑक्सीजन का थाली बना सकते हैं क्या कोई? ऑक्सीजन का थाली बना सकते हैं? हाँ, ऑक्सीजन का थाली बना सकते हैं हम.
हाँ निरंजन, ऑक्सीजन गैस का थाली बना सकता है तू? हाँ बेटा, हाँ निरंजन, ऑक्सीजन का थाली बना सकता है? ऑक्सीजन का थाली बना सकता है? हर्षवर्धन, ऑक्सीजन का थाली बना सकता है? थाली प्लेट बना सकता है क्या? तेजस्विनी, कैन यू फॉर्म देन ऑक्सीजन का थाली प्लेट? नागेंद्र, थाली बना सकते हो ऑक्सीजन का? क्यों नहीं बना सकता ऑक्सीजन का थाली? बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल, तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं है। अंडरस्टैंड? इट इज नॉट अ मेटेलिक प्रॉपर्टी। सो malleability इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? मेटल। थाली बनाना, शीट में ड्रॉ करना, प्लेट में ड्रॉ करना इज मेटल। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है। अभी शिवांश, इमेजिन करो, शिवांश है ना? शिवांश है? यस सर। अच्छा, इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक रॉड है। हाँ, एक लोखंड का रॉड है। उसका एक एंड तुम्हारे घर पे जो गैस है उधर रखा है, और दूसरा एंड तुमने हाथ में होल्ड किया है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? तुम्हारे हाथ को क्या होगा? वो रॉड गर्म होगा कि ठंडा ही रहेगा तुम्हारे पार्ट? सर गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा। तुम उसको छोड़ दोगे क्योंकि काफी गर्म हो जाएगा ना, है ना? या फिर तुम उस पर पानी डालोगे। इसका मतलब इट इज कैरिंग, यस सर। it is carrying heat, so it is a good conductor of heat. वैसे it is also a good conductor of electricity. समझ में? तो metals are good conductor of heat and electricity. I suppose ये point समझा ना? यस सर, समझा। अच्छा, generally all metals are hard. ज्यादातर metals कैसे होते हैं? Hard होते हैं, tough होते हैं. However, alkali metals from group 1 such as lithium, sodium and potassium are exceptions. जो alkali metals है, ठीक है, lithium, sodium, potassium, ठीक है, आर एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। दीज मेटल्स कैन बी कट विथ नाइफ। हाँ देखो ना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये सब चीज को हम इसको काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं विथ नाइफ। इट इज वेरी सॉफ्ट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और बॉइल होता है। For example, tungsten metals has the highest melting point of 3422 degrees Celsius. Melt होता है, इतना ज्यादा डिग्री है ना, इतना हीट। हाँ, on the contrary, the melting point and boiling point of metals such as sodium, potassium, mercury, gallium are very low. A sound is produced when certain metals are struck. है ना? थाली बजाओ, ताली बजाओ, याद आ रहा है कुछ? घंटी बजाओ, शंख बजाओ। लोग बहुत सारे थाली लेके बजा रहे थे ना, चम्मच और प्लेट वगैरह लेके बजा रहे थे ना। हाँ, क्या था वो? हाँ, बेवकूफी था, दैट वाज स्टुपिडिटी। हाँ, तो ये क्या है? दो मेटल जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड इसको क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। हाँ, द मेटल्स वर आल्सो कॉल्ड एज सोनोरस मेटल। जो मेटल्स आपस में टकराने के बाद आवाज आता है उसको सोनोरस मेटल बोलते हैं। ओके, नाउ निरंजन, व्हाट इज अ सोनोरस मेटल? निरंजन, व्हाट इज अ सोनोरस? सर, which metals attract and make sound? वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा। ओके, अब म्यूट कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। व्हेन सर प्रॉपर्टीज मेरे ऑफ, सर बोलो ना। सर मेरे बीच बीच में माइक है ना, जरा प्रॉब्लम हो रहा है, वो अचानक अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा और है? मेरा नेटवर्क भी लो हो रहा है, मैं बार बार किक आउट हो रहा हूँ, तो सर रिप्लाई नहीं दिया ना, तो मैं मीटिंग के बाहर रहूंगा। ओके सर। ओके, ठीक है। Physical properties of non-metals. When properties of non-metals are considered, it is found that some non-metals are in solid state. कुछ non-metals है but solid state में है,
एंड कुछ गैसियस स्टेट में है. एक्सेप्शंस इज द नॉन मेटल ब्रोमीन विच इज इन द लिक्विड स्टेट. तो बहुत सारे नॉन मेटल्स है ना, सॉलिड या गैसेस, ज्यादातर गैसेस होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शन एक आध लिक्विड भी होते हैं, जिससे कि ब्रोमीन. ब्रोमीन ही इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट. द नॉन मेटल्स डू नॉट possess luster, मतलब उसमें शाइनिंग नहीं होता है. बट आयोडीन इज एन एक्सेप्शन, इट इज क्रिस्टल्स एंड शाइनी. तो एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन इज अ क्रिस्टल एंड इट इज शाइनी, वो शाइन करता है. आयोडीन, आयोडीन तुम लोगों ने देखे, वो मलम रहता है ना, बीटाडीन मार लगने पे लाल कलर का मलम लगाता है, वो आयोडीन है. डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, 9 पे पढ़ा है तुम लोगों ने डायमंड. ठीक है. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखो ना, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड एक्सेप्शन. वो इतना कड़क है, इतना मजबूत है. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ. अर्थ में सबसे कड़क होता है. अगर हथौड़े से डायमंड को मारे तो हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड नहीं टूटेगा. ठीक है. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ग्रेफाइट एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अभी वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ठीक है. Now, Harshvardhan, which is the hardest substance in the earth? Harshvardhan, which is the hardest substance in the earth? धरती पे सबसे हार्ड मटेरियल क्या है हर्षवर्धन? बताओ जल्दी बोलो. हर्षवर्धन, what is the hardest substance in the earth? हर्षवर्धन is not answering. नहीं है, एब्सेंट लगा दूंगा मैं. शिवम, what is the hardest substance in the earth? Shivam, which is the hardest substance in the earth? Shivam is not responding. Yes, sir. Yes, What is the hardest substance in the earth? sir. Diamond. Sure. Are you Yes, sure? sir. Yes, sir. Okay, okay. ठीक है. Now, okay. Metals क्या है? They are reactive. वो क्या होते हैं? Highly reactive होते हैं. They lose electron easily and become electropositive और positively charged ion. जैसे कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, एक दे दिया है. हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ा है ना, उसमें सोडियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. ठीक है. द एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. दैट इज व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. हाँ, metals are called as electropositive element. Why? Because they lose electron easily. Understand? Now, substances which are good conductor of heat are usually good conductor of electricity as well. मतलब वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट करता है, हीट अच्छा कंडक्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है. अच्छा. कैन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू गैस? कैन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू गैस? बताओ. तेजस्विनी, can electricity pass through gas? Tejaswini? Tejaswini is present or absent? Can electricity pass through gas? तेरे डैडी को बोलना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर, पता चल जाएगा उनको. Can electricity pass through gas?
लाइटनिंग में कैसे होता है? बिजली आसमान से जमीन पे कैसे गिरता है? एयर से। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू हाई, मोर देन, वहां पे तो 2 लाख पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वोल्ट, 2 लाख वोल्टेज, तब ऐसा होता है, इतना आसमान से, एयर से इट कैन ट्रेवल। समझ में आया? द पोटेंशियल डिफरेंस उतना होना चाहिए। तो समथिंग कुछ नॉलेज के लिए बताया। सिमिलरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर आल्सो, नहीं, सिमिलरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर आल्सो कॉल्ड एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चीज हीट के लिए इलेक्ट्रिक, those things which are good conductors of heat are good conductors of electricity also, and those things which are bad conductor of heat are bad conductors of electricity also. Exception, diamond is a bad conductor of electricity but good conductor of heat. देखो, इसको याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। Diamond is a bad conductor of electricity and good conductor of heat. समझ में आया? Diamond is a bad conductor of electricity and good conductor of heat. Apparatus, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। A pair of tongues of or spatula, knife, burner, etc. Chemicals, samples of aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc, and sodium. Use sodium carefully in presence of teacher. Hold the sample of each of the above metals at the top of the flame of a burner with the help of a tongues or spatula. Okay. Which metal catch fire readily? इसको सोचो, देखो, बताओ मुझे। ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट, ठीक है, एंड सोडियम इज मोनोवेलेंट। तो एक ऑक्सीजन के साथ कितना सोडियम जाता है? 2 जाता है। सो फॉर्मूला बनता है Na2O। सो Na2 बन गया O। अच्छा, कितना ऑक्सीजन है इधर? 2 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि O2 है ना, तो इधर 2 लिखा, इधर 2 लिखा, तो 2 2 जा 4, सोडियम 4 हो गया, तो इधर 4 लिखा। ठीक है, ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू? हाँ, क्या बोल रहे वो? यस सर। देखो, Na+O2 formula will form Na2O. One sodium has got 1 positive charge, 1 oxygen has 2 negative charge. तो फॉर्मूला बनता है Na2, 2 sodium for 1 oxygen. So total oxygen here is 2. So I will be writing here as 2. But once I write here 2, so it will be 2 2s are 4. So it will be 4. I hope all of you understood this reaction. Okay. Now next comes is your, the metal combines with oxygen on heating in air and metal oxides are formed. Sodium and potassium are very reactive metals. Sodium metals combine with oxygen. It combines with oxygen, okay, in the air and even at room temperature and form sodium oxide. So sodium को कभी भी खुला नहीं रखते हैं. It is kept in kerosene. ठीक है? On exposure to air, sodium readily catches fire. Therefore, to prevent the accident in the laboratory elsewhere, it is kept in kerosene. Oxides of some metals are soluble in water. They react with water to form alkali. देखो, सोडियम ऑक्साइड जो है, वो क्या होता है? वाटर में डालेंगे तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो अल्कली बन गया, तो सोडियम तो रहता नहीं है, तो इसके लिए उसको केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। We know that magnesium oxide is formed on burning magnesium ribbon in air. एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव आयन होता है, सॉरी, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? MgO, मतलब एक मैग्नीशियम एंड एक ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन है ना इधर,
तो यहाँ पे तूने 2 लगाया तो मैग्नीशियम को भी 2 लगाना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH ट्वाइस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। एक नाउ एक और एक्सपेरिमेंट है, बीकर लेने का, केमिकल सम सैंपल्स ऑफ वेरियस मेटल्स, इंपॉर्टेंट नोट, सोडियम मेटल शुड नॉट बी टेकन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, सोडियम मेटल शुड नॉट बी टेकन। हाँ, नाउ प्रोसीजर, अ ड्रॉप or a piece of each of the metal in separate beaker filled with cold water. Which metal reacts with water? Which metal floats on water? Why? Prepare a table with reference to the above and make your note of your observation. ये तुमको स्कूल में प्रैक्टिकल में सिखानी चाहिए, लोग सिखाएंगे, ठीक है। गो अहेड, नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा, देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा प्लस हीट बनेगा। तुमको मालूम है हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव, हाँ, और हीट और हाइड्रोजन ब्लास्ट हो जाएगा। एक सोडियम का टुकड़ा तुमने डाल दिया वाटर टैंक में तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, बॉम्ब जैसा। इसके लिए सोडियम शुड नॉट बी टेकन, क्लियरली लिखा है उधर। पोटेशियम एंड वाटर फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर vigorously। वहां पे देखो विगरसली लिखा है, विगरसली मतलब रैपिड मतलब फास्ट, विगरसली मतलब वेरी फास्ट, एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, हीट भी बहुत निकलता है, ठीक है। नाउ फ्यूचर में हाइड्रोजन कार बोला गया ना, होंडा कंपनी बोल रहे दे विल मेक हाइड्रोजन कार, इट विल रन ऑन हाइड्रोजन। तो उसमें फ्यूल क्या रहेगा, पानी रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर। वो वाटर डालेंगे तो हाइड्रोजन उससे निकलेगा, कार विल रन ऑन हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन गैस में हीट होएगा, हाइड्रोजन गैस से कार रन करेगा, एंड ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एटमॉस्फेयर विल बी फुल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, क्या लगता है एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन होना सही है? कौन देगा इसका आंसर? एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन होना सही है? शिवांश, इज इट राइट टू हैव टू मच ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर? शिवांश इज देयर? शिवांश, शिवांश इज देयर? Shall I call your grandpa? Okay, let me give a call. Tejashwini? Tejashwini is there? Shivam? Yes, sir. Is it right to have too much oxygen in the atmosphere? Don't miss. हाँ बेटा, Huh? Yes, sir. is it right to have too much oxygen in air? No. No. Yeah. अरे ऐसा कैसे? Yes. Yes. ऐसा कैसे? नागेंद्र, तुझे क्या लगता है बेटा? Yes, sir. Right to have too much oxygen in air, Yes, sir. but oxygen causes corrosion of metal. तो जितने भी बिल्डिंग है वो गिर जाएंगे, नहीं लगता तुमको? Okay. Oxygen causes corrosion, you know, luster is lost। सब जगह पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं है। सो इसके लिए ये परमिशन नहीं मिल रहा है, मालूम है तुमको? एक रेंज तक ठीक है, ऑक्सीजन 20% ही होना चाहिए एटमॉस्फेयर, विच इज द बेस्ट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। बाद में अगर वो ज्यादा हो जाता है तो भी इट इज हार्मफुल, वो कम होता है तो भी हार्मफुल। इसके बारे में कोई जल्दी नहीं सोच पाया, तो सोचो जरा। हाँ, now let's go ahead। on the other hand, ये हो गया कैल्शियम, द मेटल लाइक aluminium, iron, zinc do not react with water whether it is a cold or hot, but they react with steam to form their oxide। steam से react करते हैं to form their oxide। hydrogen gas is liberated, देखो, तो Al2O3 is aluminium oxide, Al2O3 is aluminium oxide, Fe2O4 is
आयरन ऑक्साइड, रस्ट, जंग बोलते हैं ना, जंग, Fe3O4. Zinc plus water is, that is steam, is zinc oxide and hydrogen. Okay.